children, we are studying about the electoral politics. In the previous video, we had studied the why elections, and now today we will read why do we need elections. हमें election की ज़रूरत क्यों है? Elections take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. अब हम देख चुके हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी में रेगुलरली होते हैं. लगभग 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं वर्ल्ड में जहां पर इलेक्शंस के द्वारा लोग जो होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो, लेकिन वहां पर भी इलेक्शन होते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डू वी नीड इलेक्शन? हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age or experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding one on who is more experienced or knowledgeable. But let us say the people can resolve these difficulties. Clearly, such a place does not require elections. But can we call this place a democracy? How do we find out if the people like their representative or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? That's why this requires a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. In an election, the voters make many choices. They can choose who will make law for them. They can choose who will form the government and take major decisions for them. And they can choose the party whose policies will guide the government and law making. अब हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है? चलिए हम इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसे बहुत नॉलेज हो, या फिर वह सभी लोगों की पसंद भी हो, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड हो, और उसे चुन लिया जाए. फिर इसमें इस पोजीशन में इस कंडीशन में इलेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है. लेकिन हम यह कैसे जानेंगे किसी भी डेमोक्रेसी में कि जो पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है वो सभी लोग उसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं? इतने बड़े देश में सभी लोग उसे पसंद कर पा रहे हैं या नहीं? और हम ये भी किस तरह से इंश्योर करेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव इंटेलिजेंट नॉलेजेबल ये जो चुना गया है, क्या यह लोगों की विशेष को पूरी कर सकेगा? क्या यह लोगों की विशेष के हिसाब से ही काम करेगा? तो ये सारे सिस्टम के लिए हमें ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जो लोग होते हैं वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से इंटरवल मतलब बीच बीच में परिवर्तन करते रहें रेगुलर, और इस तरह से जो है चेंज करते रहें अपने रिप्रेजेंटेटिव का. और यह जो रिप्रेजेंटेटिव का चेंज कहलाता है, इसे ही इलेक्शन बोला जाता है. इसलिए हमारे समय में जो है इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हो गए हैं. किसी भी डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंटेटिव यदि कोई जनता चुनती है तो उसके द्वारा वो उस व्यक्ति को चुन सकती है जो कि उसके लिए कानून बना सकता है, जो कि उसके लिए ऐसी गवर्नमेंट को वह चुन सकती है जो कि उसके लिए मेजर डिसीजंस ले सके, बड़े बड़े डिसीजंस ले सके, या फिर वो ऐसी पार्टी को चुन सकती है जो कि उसके लिए अच्छी सही पॉलिसीज़ बना सकें और गवर्नमेंट को गाइड कर सकें और कानून बना सकें. इसलिए इलेक्शंस की ज़रूरत होती है. नाउ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? अब एक इलेक्शन जो होता है उसको कौन सी चीज़, क्या चीज़ जो है वो डेमोक्रेटिक बनाती है? Elections can be held in many ways. All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. How do we distinguish democratic elections from any other elections? We have discussed this question briefly in chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called democratic elections. Let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum conditions of a democratic election.
अब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक हो या ना हो, वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में तो होते ही हैं, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं। तो जैसे हमने चाइना के बारे में पढ़ा था, साउथ कोरिया के बारे में पढ़ा था, तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और क्या ज़रूरत इन इलेक्शंस की है और क्या चीज़ है जो ये इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। वन वोट वन वैल्यू हमने पढ़ा था कि सभी के पास चूज करने का अधिकार हो, सभी के वोट का बराबर इक्वल वैल्यू हो। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. Third, the choice should be offered at regular intervals. Elections must be held regularly after every few years. Fourth, the candidate preferred by the people should get elected. Fifth, elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. अब सेकेंड थिंग इसमें यह है कि जो पार्टीज होती हैं और कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल फ्री अधिकार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे वह इलेक्शन में खड़ा हो सके या जिसे वोटर चाहे वो इलेक्शन में खड़ा हो सके। अब जो इलेक्शंस होते हैं एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से होने चाहिए। रेगुलरली इंटरवल्स उसमें बहुत ज़रूरी है, तभी वह डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाते हैं। फोर्थ, जो कैंडिडेट चुना जाए वो पीपल के द्वारा ही चुना जाए, लोगों के द्वारा ही चुना जाए, उसे ही प्रेफरेंस मिले जो जिसे कि जनता ने वोट दिया है। और फिफ्थ जो कंडीशन है वह यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। एक्चुअली में वही व्यक्ति सत्ता में आना चाहिए जिसको लोग रियली में चाहते हो कि वह सत्ता में आए। और यह जो सत्ता में कौन आएगा इसका जो निर्धारण जो लोग करते हैं वो अपने वोट के द्वारा करते हैं। These might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. We will read in this chapter about our own country to see if we can call these democratic elections. यह जो सिंपल सी कंडीशंस बताई गई हैं हर कंट्री में ये फुलफिल नहीं होती हैं। हम इस चैप्टर में अपनी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। It is good to have political competition. Elections are thus all about political competitions. These competitions takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, elections will become pointless. अब इलेक्शंस जो होते हैं वो पॉलिटिकल कंपटीशन उसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शंस जो है वो पॉइंटलेस हो जाते हैं। Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power to get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even then, they wish to serve the people. They may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. So, how do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decide this reward or punishment? The simple answer is the people. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentive to political parties and leaders.
They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in the next election. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. So पॉलिटिकल कंपटीशन इसलिए ज़रूरी है कि यदि कोई लीडर है जो वो पॉलिटिकल पावर में आता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल लीडर चाहता है कि उसे पावर हो उसके पास और वह सत्ता में आए। तो यदि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो यदि वो कंपटीशन करती हैं, तो जो सत्ता में पार्टी है उसे लोगों के हित में कार्य करना ही होगा। यदि वो लोगों के हित में कार्य नहीं करेगी तो फिर जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे तो फिर उस पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो सत्ताधारी पार्टी है वो चाहे या ना चाहे उसे लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करने ही पड़ेंगे। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस प्रॉब्लम से भली भांति परिचित थे कि यदि कोई एक ही पार्टी सत्ता में रेगुलर बनी रहेगी तो फिर वह लोगों के हित में काम नहीं करेगी, फिर वो सिर्फ अपने फ़ायदे देखेगी। इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें हर 5 साल में फिर इलेक्शन होंगे, तब हमारे देश का विकास संभव हो सकेगा। इसे हम इस तरह से और अच्छे समझ सकते हैं कि यदि एक शॉपकीपर है और सिर्फ एक ही शॉपकीपर है तो वह सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा, लेकिन यदि वहाँ पर और उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पर और उसके दूसरे दुकान वाले हैं जो उसको कम्पीट कर रहे हैं, तो फिर वो जो कस्टमर होंगे उसे अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करेगा कम से कम दाम में, ताकि वो जो है अपने दुकान में लोगों को लुभा सके। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो लोगों की, जनता की भलाई कर सकें। Students, you have to read the chapter deeply and carefully. What is our system of election? We will read about it in the next video.